جب شکر، یقین، اخلاص تینوں جمع ہوتے ہیں، کالپی کے بزرگ نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مشائخ کالپی کانفرنس ہے، مشائخ کالپی کی اگر بات کروں تو ایک حیثیت نہیں۔ اگر مشائخ کالپی کو دیکھا جائے نسب کے اعتبار سے تو آپ کو معلوم ہے ان کا نسب ملتا ہے حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ذرا محبت سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ کس سے ملتا ہے؟ امام زین العابدین سے ملتا ہے۔ کون نہیں جانتا امام زین العابدین وہی ہے کہ جو کربلا کی سرزمین پر سارا منظر دیکھ کر کے آئے تھے۔ انہی کے سلسلے میں، مشائخ کالپی کے سلسلے میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد تخت مثال رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیخ احمد، میں بہت مطالعے کے ساتھ بول رہا ہوں، جتنا میں پڑھ سکتا تھا مختصر وقت میں، 3 دن سے ویسی باہر تھا، اس عالم میں بھی جو پڑھ سکا ہوں وہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبق میرا دھیان سے سنیے گا، غلطی ہو تو اصلاح کر دیجیے۔ آپ لوگ بول سکتے ہیں تو بول جائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نذرانہ مت دیجیے۔ ایک جملہ تھا، ایک شاعر تھے پاکستان کے، بڑے اچھے اور زبردست، تو انہوں نے دیکھا کہ یار مجمع میں کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، تو کہنے لگے کیا بات ہے، نہ داد ہے نہ امداد ہے۔ ارے سمجھے میری بات کو؟ آپ لوگ نہیں سمجھ پائے، سمجھتے تو یار کم سے کم اردو سے کچھ لذتیں تو محسوس کر لیا کرو۔ بولے کیا بات ہے، نہ داد ہے نہ امداد ہے نا؟ ہاں، تو کم سے کم امداد ہی ہو جائے۔ امداد نہیں ہو رہی ہے تو دادی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں دادی سے کام چلا لیجئے، تنخواہیں بڑی مختصر ہیں۔ داد سے کام چلائیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ بھی بولے بھائی سبحان اللہ۔ بات چل رہی ہے مشائخ کالپی کی، نسب کیا ہے؟ امام زین العابدین سے ملتا ہے۔ ایک نسب پر آپ کو بڑی کامیاب بات عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نسب اتنا پاکیزہ نسب ہے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام کے حضر مبارک گوشت شریف پر ایک آواز آئی، بھائی ایک بات میری دھیان سے سنو بیٹا، ادھر دھیان سے میری بات کو سنو، موبائل جیب میں رکھو اپنا اور دھیان سے سنو، بات نہیں کرتے اچھے بچے، غور فرمائیے گا۔ سرور کائنات کے کان سے ایک آواز ٹکرائی، کسی نے کہا ماں بالو سرکار، انہوں نے کہا قیامت کے دن سرکار علیہ السلام کا نسب کام نہیں آئے گا۔ میرے نبی منبر پہ چڑھے اور فرمایا ما بالو اقوام یزعمون اللہ قرابتی لا تنفع یوم القیامہ۔ سرور کائنات نے کہا کیا ہوا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رشتہ داری قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ سرکار نے فرمایا کلو نسب و سبب تنقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی فانہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سرور کائنات نے فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں میری رشتہ داری کام نہیں آئے گی، مشائخ کالپی کی نسبت کو ذرا سمجھیے گا۔ کہنے لگے کیسے ایسی بات بولتے ہیں؟ سنو، قیامت کے دن قرآن نے کہا نا فَإِذَا نُفِخَ فِي سوری فلا انصاب بینہم، جب سور پھونک دیا جائے گا تو رشتے کام نہیں آئیں گے، چچا نہیں، بھیا نہیں، بیوی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، رشتے دار سے بھاگتے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر ایک رشتہ باقی رہے گا۔ کون سا رشتہ؟ کہا تیرے نبی کا رشتہ ہے، فإنہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ رشتہ دنیا میں بھی جڑا ہے اور آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب تو ہاتھ اٹھا کے اظہار کر دو یار، حضور سے رشتہ کیا ہے آپ کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ سلامت رہیے۔ مشائخ کالپی کا جو نسب ہے امام زین العابدین سے، اور وہ لختے دیگر ہیں امام حسین کے، اور امام حسین لختے دیگر ہیں فاطمہ الزہرا کے۔ اب اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے۔ اگر کوئی یہودی پکڑ کے جناب اسرائیل صاحب پوچھ لے اور کہہ دے
दावा करे कि मेरे नबी तेरे नबी से अफजल, हजरत मूसा का मकाम मुस्तफा करीम से ज्यादा है, बड़ा है, कोई यहूदी ये कह दे, इंसान परेशान हो जाएगा। या आज तक मौलाना लोगों ने हमें यही बताया है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। लेकिन ये तो अजीब दावा कर रहा है, वो कहेगा दलील आपके कुरान से दे रहा हो। देखो आपने पढ़ा है ना कि एक दो यतीम बच्चे थे, हजरत खिद्र और मूसा का वाकया 15वें पारे से शुरू होता है, 16वें में जाके खत्म होता है। सूरह मरियम से पहले पहले उस वाकये को पढ़ लीजिए। कहा एक बात तो बताओ कि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि 2 यतीम बच्चे थे, उनका एक दादा था 14 पुश्तों पहले, वो नेक था, उसकी वजह से दीवार गिर रही थी, हजरत खिद्र ने सीधा कर दिया। अब सवाल ये कर रहा है, क्या तुम्हारे नबी की उम्मत में कुछ ऐसे बच्चे आए जिनके लिए दीवार सीधी की गई हो? सवाल कर लिया उसने। तुम्हारे नबी की उम्मत में हो तो बताओ, पहली सदी हो में बताओ, दूसरी में हो तो बताओ, 2025 में हो तो बताओ। सवाल समझे कि नहीं समझे? अरे सवाल समझे भाई। नौशहरा, कौन सा शहरा? नो कौन सा? नौशहरा। समझ में आया कुछ शहरा? अरे समझे? नहीं समझ पाए? अल्लाह के बंदो बोलो तो सही यार, हाँ या ना में तो जवाब दो। लगे तो सही कि मैं जिंदा लोगों के बीच गुफ्तगू कर रहा हूं। यकीन कर लूं आप लोग जिंदा है? यकीन कर लूं? हाथ उठा के नहीं, जरा सुभान अल्लाह बोलकर अपने वजूद का सबूत दीजिए। गौर फरमाए, उसने यहूदी ने सवाल कर लिया मोहतरम, कहा कि तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा? उससे कहना घबरा नहीं, हमने मसलक आला हजरत का लिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब मतलाउल कमरैन फी इबादत सबकतुल उमरैन, एक एक जुमले को जरा ध्यान से सुनना, नसब देखना। नसब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फातिमता ahsanat फरजहा फहर्रमहा अल्लाह तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नार यौमल क़ियामा। सरवरे कायनात ने फरमाया, सुनो, फातिमा को, अल फातिमा ने अपनी पाक दामनी, तकवा शियारी, नुकोकारी और परहेजगारी का ख्याल रखा। अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को कयामत के दिन जहन्नम पर हराम कर दिया है। अब एक बात पे जरा गौर करना, उधर जो 14 पुश्तों पहले दादा गुजरा था, उसके तकवे ने क्या किया? उसके तकवे की बुनियाद पर उन बच्चों का खजाना बचाया गया। कुर्बान जाऊं फातिमा तेरी साते पाक पर। उधर 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 दादा का तकवा सिर्फ खजाना बचा रहा है और यहाँ फातिमा का तकवा जहन्नम से घराना बचा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम कायनात, खानदाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह। सुनो, जब सरकार के आखिरी बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अरब के कुफार ने कहना शुरू किया नबी की नस्ल खत्म हो गई। लेकिन उन जालिमों को यह पता नहीं था कि आखिरी बच्चा लिया किसने है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सरकार की बारगाह में 2 बच्चे हैं, एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरा। एक का नाम हुसैन, दूसरे का नाम हजरत इब्राहिम। सरकार के बेटे, एक फातिमा ज़हरा के लख्ते दिगर। जिब्रील अमीन ने कहा, रब कहता इन दोनों में से एक तुम ले लो, एक मुझे दे दो। सरवरे कायनात ने हुसैन को चुन लिया, हजरत इब्राहिम को खुदा के हवाले किया। अब जिसको अल्लाह के हवाले किया जाए उसका तो इंतकाल ही होगा, 3 दिन बाद इंतकाल हो जाता है। अल्लाह जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, उसके बाद जब भी इमाम हुसैन मेरे सरकार की बारगाह में आते, आका फरमाते ये हुसैन है जिस पर मैंने अपने इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की औलाद है, आका करीम अलैहि सलाम के नवासे हैं। और आप जानते हैं दुनिया का सिस्टम क्या है, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, कयामत तक जो आखिरी इंसान आने वाला है, सबके बारे में आप पढ़ लीजिए। नस्ल चलती है लड़कों से, नस्ल चलती है बाप से, नस्ल चलती है मर्दों से। यहाँ तो मुस्तफा के 3 बेटे इंतकाल कर गए, ठीक है अल्लाह ने ले लिया, लेकिन जहन में सवाल आता है, आदम की औलाद शीश से चल रही है, इब्राहिम की औलाद हजरत इस्माइल से चल रही है, इसी तरीके
तरीके से हजरत याकूब की औलाद यूसुफ से चल रही है, लेकिन मुस्तफा करीम के तीनों बेटे इंतकाल कर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को, अल्लाह की मशीयत को रहम आ गया और अल्लाह ने कानून तब्दील कर दिया। नस्ले आदम का, नस्ले इंसानी का कानून तब्दील कर दिया। सबकी नस्लें चलेंगी लड़कों से, और मुस्तफा की बारी आई। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मुस्तफा की नस्ल को अली की पुष्ट में रख दिया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है नस्ब मशाइख काल्पी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी हैसियत का वक्त नहीं है, तीसरे पर चला जाता हूं, चौथा किसी और मौके पे सुनाऊंगा, पांचवें के बारे में मजीद इंतजार कीजिएगा। माशाअल्लाह। छठी शरीफ इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आने वाली है। तवज्जो है ना। वाह वाह। सातवें का मरहला यह है कि सातों जमीन के ऊपर रह रहे हैं, सातों जमीन सातों आसमान के नीचे बस रहे हैं। आज तो आप जानते ही हैं फरिश्ते हैं जो अर्श आजम को उठाए हैं। बात समझ गए? हाँ समझ गए ना। और 9 के तो बारे में आपको पता ही है, अक्सर 9 ही के होंगे। वाह 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 वाह। नहीं समझ पाए। वाह वाह वाह। 10 के बारे में तो यही कहूंगा, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ताद। वाह वाह वाह। 11वीं में आके ये कह दूंगा ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना करेगा तो भला कौन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं और बाकी आप ही इसकी आगे तशरीह कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। हजरत सरकार मीर मोहम्मद रदी अल्लाह ताला, बहुत अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो एक ऐसी बात भी बता के जाऊंगा, शायद मुझसे पहले वो रिश्ता किसी ने ना बताया हो, और मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं। आपको यकीन ना हो तो फिर आप इस बात को ज़हनो दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहले एक बात सुने, सरकार मीर मोहम्मद यानी हुजूर गयास से मिल्लत के आबाओ अजदाद दादाओं में एक जात है जिसका नाम हजरत शेख अहमद तख्त मिसाले रसूल। ये कौन थे इसको नहीं कह रहा हूं, इससे अगली बात जब बताऊंगा तब इंशाअल्लाह ईमान और ताजा होगा। ये कौन थे, मिसाले रसूल क्यों कहते थे? दरअसल जब इनका सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुजुर्ग ने ये गुजारिश की कि हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम बाद में भी हो सकता है। तवज्जो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मैं आपको देखना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया तुम ऐसा करो, मेरा एक बच्चा है जो हर जुमे के दिन मक्का शरीफ तख्त पर सवार होकर के जाता है। सुभान अल्लाह। आपकी आदत थी कि हर जुमे के दिन मक्का शरीफ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, किस पर? तख्त पर सवार होकर। तो चूंकि तख्त पर सवार होकर जाते थे इसलिए तख्त पड़ गया, और शबीह रसूल थे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अक्स जमील नजर आता था, इसलिए उनको मिसाले रसूल कहा गया। उन्होंने दीदार करना चाहा, उनका दीदार किया, दीदारे मुस्तफा की बरकतें मिल गई। हवाला दे रहा हूं, आईना कालपी का मुताला कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी कुछ मसला हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं की नस्ल में कई नस्लों के बाद एक बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम सैयद अहमद जाहिद है। क्या नाम है? ऊंचा बोलो, सैयद अहमद जाहिद। बोलो ना यार प्यार से, अल्लाह वालों के नाम से जबानें सुथरी होती है। इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, अल्लाह की रहमत बरसती है। क्या नाम था? सैयद अहमद जाहिद। ये सैयद अहमद जाहिद कहाँ के थे? आपको मालूम है ये तिरमिज़ीन एक जगह है जो उसको तिरमिज़ी कहा जाता है। वो जरा तवज्जो करें, कहाँ थे तिरमिज़ीन? तिरमिज़ीन में एक जगह और है जिसका नाम गालिबन तौरान या तौरान रखा गया है। उस तौरान जगह के ये रहने वाले थे। ईरान की सरजमीन पर यह जगह पाई जाती है। एक बादशाह था जिस बादशाह का नाम है मलिक सुबक्तगीन। नाम सुना है? कौन है ये? महमूद गजनवी के वालिद हैं।
सुभान अल्लाह। अभी आया हूं बारगाह मसौली से हाजिरी, बारगाह मसूदी से और बारगाह सालार से हाजिरी दे। नक्शा, मैं कनेक्शन बता रहा हूं। सबकतगीन बादशाह को पता चला, बुला लिया सैयद जाहिद अहमद को और कहा मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में होगी। सुभान अल्लाह। बोले तो यार ये महराज शरीफ है ना यार, जिसका एहसान है कम से कम उसके नाम पर तो बोलिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं इसलिए बुलवा रहा हूं हजरत, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करना चाहिए ना। मैं सुभान अल्लाह बुलवा रहा हूं, मैं इनसे कह रहा हूं बोलिए, ये बोलेंगे तो नेकी पर मदद होगी, तकवा परहेजगारी पर मदद होगी। मैं चाहता हूं डबल डबल नहीं, 3-3 दर्जा। आप जानते हैं ना अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया। मन क़ाल सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही ग़ुरिसत लहू नक़लतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बोल भाई बोल बोल, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा ये जिक्र कर लेगा ना, सरकार फरमाते हो उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। मैंने कहा जहां नाम का लगाया जाएगा तो जिस जगह लगाया जाएगा वो जमीन भी होगी और वो दरख्त भी होगा और वो दरख्त बासमर है, फलदार है। तो आप देखते, आज तक आपने पढ़ा था 2 in 1 3 in 1 का फार्मूला मैं दे रहा हूं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आदत बनाए, जहां दरख्त लगेगा आपके नाम का, जन्नत का वो हिस्सा भी आपका होगा और जो दरख्त लगेगा वो दरख्त भी आपका होगा, उस पर जो फल आएगा वो फल भी आपका होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ की है, बुखारी शरीफ की भी एक हदीस है, लेकिन वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। सबकतगीन बादशाह ने कहा मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ जाएगी। उन्होंने शादी कर दी। अब शादी करने के बाद देखिएगा जरा, 3 बच्चे पैदा हुए हजरत सैयद जाहिद के यहाँ। एक का नाम हजरत हसन रखा गया, दूसरे का नाम क्या रखा गया, सैयद अहमद औलिया रखा गया, और तीसरे का नाम सैयद जाहिद रखा गया। हजरत कादरी दूल्हा की आमद हो रही है, शेरे कालपी की आमद हो रही है, शेख कामिल की आमद हो रही है। अदब के साथ खड़े हो जाए, नारे तकबीर, अपने हाथ को अलम बना के लहरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे मौलाए कायनात, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, सरकार गया से मिल्लत, सरकार गया से मिल्लत, सरकार अफजल मिल्लत, सरकार अफजल मिल्लत, जानशीने सरकारे कालपी, फैजाने सरकाराने कालपी, हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई सरकार गया से मिल्लत, कादरी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मशाइख़े कालपी शरीफ, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। मैं बस 10-5 मिनट बोलूंगा, खड़े हो। अच्छा अच्छा ना, 10-5 मिनट बोलना है, नहीं जरूरत क्या लग रही है? हाँ लगा दिया। बैठ जाओ, ये हरियन बैठ जाओ भैया, हरियन बैठ, खामोश ना रही हो, बोलो। हाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाइए बैठ जाइए। हुजूर गयास मिल्लत का नूरानी चेहरा देखिए। मैं जितनी देर से बोल रहा हूँ वो सब इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन्हीं की बात करने का मतलब क्या है, जो इनका मिशन है उसी को जिक्र कर रहा हूं और इन्हीं के आबाओ अजदाद का तज़किरा करके अपनी किस्मत चमका रहा हूं। आप कहें तो वाकया मुकम्मल कर लूं, वरना फिर तकरीर तो हो ही गई। हाँ भैया अफरा तफरी ना करो यार, बैठ जाओ। अरे तुम लोग कसमें खा के आए हो ना कि बैठना नहीं है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ नहीं, जाए। कसम अगर खा के आओ तो मत बैठना, वरना कसम टूट जाएगी। बिल्कुल एकदम जनानी सिफतें होती हैं इनमें। जो कसम काली, जो जिद कर ली साहब, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई जनानी सिफतें लेकर के इधर आ जाते हैं। बहुत देर से माहौल को गड़बड़ा रहे हैं। बैठ जाइए जरा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अर्ज यह कर रहा था
कि सुबुक्तगीन नामी बादशाह जो हजरत महमूद गजनवी के वालिद बुजुर्गवार है, उन्होंने हजरत सरकार सैयद जाहिद, हजरत ही के आबाओ अजदाद में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम है हजरत सैयद अहमद जाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनको बुलाकर अपनी बेटी उनके निकाह में कर दी। उसके बाद उनके यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। 3 फर्जंदे अर्जुमन तशरीफ लाए। एक का नाम था हजरत हसन, दूसरे का नाम सैयद हामिद, तीसरे का नाम था हजरत सैयद जाहिद। अब जरा तीनों को जहन में रखिएगा और अगला जुमला अगले जुमले पे तवज्जो दीजिएगा और जरा रिश्ता देखिए हजरत सालारे मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु से। इस खानदान का उस खानदान का कैसा पाकीज़ा रिश्ता है, जरा गौर फरमाए। हमने कहा सुबुक्तगीन की एक बेटी है जो सरकार साहू गाजी की निकाह में आई है और एक सैयद अहमद जाहिद है, एक बेटी इनके निकाह में आई है। तो देहाती जबान में साड़ू साड़ू कहा जाता है और उर्दू जबान में हमजुल्फ कहा जाता है। उन्हीं हमजुल्फों में एक सराने मसूद गाजी के वालिद है और दूसरे कौन है, सरकार सैयद अहमद जाहिद है। और अगला जुमला सुने, अब रिश्ता आगे नीचे जाए। हजरत सरकार जाहिद कौन हो गए, हजरत सालारे मसूद गाजी के खालाजाद भाई हो गए। हजरत सैयद जाहिद, ये सैयद जाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए आईना कालपी में एक जुमला लिखा गया। इनके मामू हजरत महमूद गजनवी ने थोड़ी सी तवज्जो नहीं करी इनकी तरफ। ये भी कर्रोफर में सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद आपको जलाल आ गया। 2200 लोग आपके साथ में थे, अपने गुलामों को लिया और लेने के बाद सीधे चले आए कहा, सवाना नामी लाहौर के करीब, जहां हजरत सरकार सैयद अहमद तख्त, हजरत सरकार सैयद अहमद तख्त मिसाले रसूल की कब्र अनवर है, वही आए और आने के बाद ठहर जाते हैं, ख्वाब देखते हैं और बताया जाता है कि तुम्हारी जगह ये नहीं, लाहौर के करीब एक दूसरा मकाम है, तुम्हें वहां जाकर के रहना होगा। और सुनो, वहां का बादशाह जालिम और जाबिर है, तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा, लेकिन अज़्म मुसम्मम रखना, पुख्ता यकीन रखना, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अब अहले इल्म से थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। एक है सालारे मसूद गाजी, एक है सैयद जाहिद। जब वो लाहौर की सरजमीन पर गए, वहां जाकर मुकाबला किया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। और दूसरे हैं हजरत सालारे मसूद गाजी, हिंदुस्तान आए, यहाँ कुफार से मुकाबला किया और जबरदस्त अंदाज में यहाँ मुकाबला करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। वाहरे मशाइख, आपका क्या बुलंदो वाला मकाम है, रिश्तेदारी आपकी ऐसी। एक आपके जद्दे अमजद जो पाकिस्तान की सरजमीन पर ईमान की दौलत बांट रहे हैं और दूसरे आपके रिश्तेदार जो हिंदुस्तान में ईमान की दौलत बांट रहे हैं। सरजमीन सैयद सालार मसूद गाजी, आमदे शेरे कालपी। बस आखिरी बात सुने, हजरत सरकार मीर मोहम्मद का नाम किसने नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो आला हजरत का शजरा पढ़ लीजिए। मैं रास्ते में आ रहा था तो हजरत से यही अर्ज कर रहा था कि हमारे शजरे में, शजरे रजविया में 5 बुजुर्ग हैं महरेरा मुकद्दसा के, 6 अख्ताब सबा में से 6 और 3 बुजुर्ग हैं कालपी शरीफ के। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शजरे के अंदर आप पढ़ेंगे तो इन 2 खानकाहों का बड़ा फैजान है शजरे रजविया पर। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो। हम अहले हक हैं और हक बात को पसंद करते हैं, हक को सुनना भी पसंद करते हैं, हक को सुनाना भी पसंद करते हैं। छुपाना हमारा मिजाज नहीं है। मोहतरम तवज्जो है आपकी, गौर फरमाइएगा। सरकार मीर मोहम्मद रदी अल्लाह ताला कहां गए आपको मालूम है? कहां गए? सरकार शाह जमाल की बारगाह में गए। अदब बुजुर्गों का किस कदर हमारे बुजुर्गों में हुआ करता था, इसकी एक झलकी दिखा रहा हो। पहले सरकार शाह जमाल को देखते हैं, वो अपने पीरो मुर्शिद हजरत काजी जिया की बारगाह में गए। आदत ये थी कि अपने उस्ताद को छोड़ने के लिए कहां तक आते? घर के दरवाजे तक आते, नमाज इशा पढ़ के उस्ताद को, अपने पीर को वहां तक छोड़ते। एक दिन क्या हुआ, हजरत ने पलट के पीछे देखा, हजरत सरकार जमालुल औलिया तशरीफ ला रहे हैं। फरमाया, बेटा तुम
हमारे पास सर्दी के लिए रजाई है। कहने लगे नहीं हजरत। अंदर गए, जाकर रजाई यानी दोलाई रजाई है जिसको आप लिहाफ भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लिहाफ ला करके दिया और कहा बेटा इसको ले जाओ, सर्दी का मौसम है, अब जरा अदब देखिएगा। और जब तक ये अदब बुजुर्गों की बारगाह में ना हो, मियां फैजान नहीं मिला करता है। फैजान चाहिए तो अदब रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हजरत रात भर उस दोलाई को सर पे रख के और खड़े रहे। जब नमाज फजर का वक्त आया, सरकार काजी जिया और जिया दोनों बोलते हैं, वो बाहर तशरीफ लाए। कहा बेटा तुमने जाकर ये ओढ़ा नहीं, रात भर यूं ही खड़े रहे। कहा सरकार एक ही बात सोचता रहा, आपने मुझे ये लिहाफ तो दिया था मगर ये ना बताया था कि इसमें आपका सर किधर लगा था, पैर किधर लगा था। मेरी निस्बत मोहब्बत ने, मेरी मोहब्बत निस्बत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं अपने मुर्शिद के उस तरफ जिधर मेरे मुर्शिद का सर लगा है, जमाल का उधर पैर लग जाए, ये उसको गवारा नहीं। इमाम आजम से पूछो, मेरे इमाम आजम ने भी एक बात कही थी, कहा था मैंने पूरी जिंदगी कभी भी अपना पैर अपने उस्ताद के घर की तरफ नहीं किया था, शेख हम्माद की तरफ नहीं किया था। अरे मियां इन निस्बतों का एहतराम ही तो है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। हजरत काजी जिया ने हाथ पकड़ा, नमाज फजर पढ़ाई और पढ़ाकर सबको बिठा लिया और बिठाकर कहा अब तक ये जमाल था लेकिन जिया इसको जमालुल औलिया बना रहा है। यही अदब जब मुंतकिल होकर सरकारे मीर तक आया। सरकारे मीर की भी आदत थी मस्जिद से अपने पीर को छोड़ने के लिए घर जाते और जब हजरत ये कह देते जाओ तो पलट कर चले जाते, और अगर इजाजत नहीं मिलती यानी हजरत भूल गए तो फिर ये नहीं कि चलो उस्ताद पीर भूल गए होंगे ना, वहीं खड़े रहते। अच्छा ये लोग होते कौन है, इसको भी थोड़ा बता दूं। इनको कहते हैं फना फिश शेख, और फना फिश शेख के जरिए जो मनासिबे सुलूक तय कराए जाते हैं, इसके लिए मुर्शिद इत्तिसाल काफी नहीं होता, मुर्शिद ईसाल काफी होता है, जो दो उंगलियों के बीच कभी इधर का दिखाता है कभी उधर का दिखाता है। ये अहले इल्म के लिए था, आवाम के लिए अब मैं बात कर रहा हूं। सरकारे मीर मोहम्मद तिरमिजी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन क्या हुआ, उस्ताद व आपके पीरो मुर्शिद ने इजाजत नहीं दी, और जब इजाजत नहीं मिली तो दरवाजे से टेक लगाकर खड़े रहे। और कभी कभी ऐसा होता कि आपके पीरो मुर्शिद दरवाजा खोलते तो इंसान होने के नाते नींद आ गई तो दरवाजा खोलते नीचे गिर जाते, और गिरने के बाद फिर उठते और कहते हुजूर नींद आ गई थी, हुजूर मुझे नींद आ गई थी। एक दिन क्या हुआ, आखिरी वक्त था, हजरत मीर मोहम्मद तिरमिजी रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। अब आखिरी जुमला और आखिरी वाकिया और उसके आखिरी जुमले गोश गुजार कर रहा हो, इसी से कालपी शरीफ की शान समझ लीजिएगा। आपने क्या किया, अपने मुरीदीन को गुलगुले तकसीम कर दिए। भैया गुलगुला और बुलबुला तो समझते हो ना, इंसान बुलबुला है और खाता गुलगुला है। आप जानते हैं ना, गुलगुले खाता है शादी के मौके पे और कैफियत बुलबुले जैसी होती है, इंसान तो बुलबुला ही है। एक बुलबुला थोड़ा सा फड़फड़ाया उसके बाद खत्म हो गया। यही हाल हमारी जिंदगी का है। गुलगुला जानते हो भाई, अरे जानते हो ना गुलगुला, अगर ना समझते हो तो फिर समझा दूं, और अगर समझ रहे हो तो फिर जरा बोलो ताकि बात जल्दी से आगे बढ़ जाए। गुलगुला जानते हो ना, हाँ शादियों के मौके पर जो बनाया जाता है, हमारी देहाती जबान में रत जगह कहते हैं, रात जगह, असल में उसी को मुख्तसर करके रत जगह बोलते हैं। पूरी रात औरतें छानती रहती है गुलगुला और सुबह को आता है बुलबुला और खा के चला जाता है गुलगुला। यही कैफियत हुआ करती है। हजरत मीर मोहम्मद तिरमिजी रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को, उनके पीर भाइयों को, उनके पीरो मुर्शिद हजरत सरकार शाह जमालुल औलिया गुलगुले तकसीम कर रहे थे, एक एक दो दो करके। ये आए, इन्होंने आकर अपना पूरा जुब्बा जो पहने थे उसका दामन फैला लिया। हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, पूंजी मुख्तसर दामन इतना बड़ा। अच्छा लेने के भी आदाब होते हैं। हजरत ने फरमाया मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। वाह वाह वाह। सरकारे मीर मोहम्मद तिरमिजी ने जब इतनी गुजारिश की, हजरत ने 7
या 9 या 11 गुलगुले दिए। वाह, वो गुलगुले नहीं थे हकीकत में, हाय, हाय, उन गुलगुलों से इशारा था हाय, हाय। असहाब करामत बुजुर्गों की तरफ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार शाह जमालुल औलिया ने 7, 9 या 11, अब नस्ल शुमार करके मैं नहीं बताऊंगा, ये हुजूर गयास मिल्लत की जिम्मेदारी है, ये हजरत अफजल मिल्लत की जिम्मेदारी है। अब बुजुर्ग, हाँ, चाहे वालिदे बुजुर्गवार बताए या फर्जंदे अर्जुमन बताए, मैं तो सिर्फ इजमाल करके छोड़ के जा रहा हूं। ये तो ये जानेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, सरकार शाह जमालुल औलिया को 7 गुलगुले दिए या 9 गुलगुले दिए या 11 गुलगुले दिए और फरमाया जाओ बिला मशक्कत तेरे खानदान में असहाबे करामत पैदा होते रहेंगे। जितने गुलगुले दे रहा हूं इसी की निस्बत से बिला मशक्कत। बिला मशक्कत का मतलब क्या है? बिला मशक्कत का मतलब बता दूं, चोर आया था चोरी करने, गौसे पाक ने नजर डाल दी, कश्फ करामत का वली बना दिया, कुतुब बना दिया। यानी यहाँ बहुत ज्यादा रिजोजाहद है और रियासत करने की जरूरत नहीं। हमने तुझे ये दिए हैं, इसकी मिकदार बराबर तेरे खानदान में असहाबे करामत बिला मशक्कत पैदा होते रहेंगे। अब गिनती इनसे मालूम कीजिएगा, हजरत बताएंगे। यहां तक मेरा मुताला था, अगला मुताला हजरत बता देंगे। इसलिए मशाइख काल्पी में मैं 7 की गिनती ना सही 3 के बारे में कंफर्म कह रहा हूं, हालांकि ऊपर वाले और ज्यादा है, लेकिन बात यहां सरकार शाह मीर हजरत मीर मोहम्मद तिरमिजी से है। उनके बाद वाले इनसे शुमार कीजिए। मैं तो सदरे में 3 बुजुर्गों को पढ़ता हूं, एक का नाम मीर मोहम्मद है, दूसरे का नाम मीर अहमद है, तीसरे का नाम मीर फजलुल्लाह है। हमने कहा ये तीनों के तीनों असहाबे करामत भी है, साहिबे कश्फ करामत भी है। अगर फैज चाहिए तो चले जाना काल्पी और इन आकाओं की बारगाह में जाकर मदद हासिल करना। यकीन बोलता है इधर जबान से निकलेगा उधर मसला हल कर दिया जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी, हुजूर गयास मिल्लत, मसलके आला हजरत, हुजूर अफजल मिल्लत। वाह 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 वाह। चलो एक बात और बता देता हूं, जब बात याद आ गई है तवज्जो है। अजमेर शरीफ को जानते हो तो कारी अजमेर को भी जानते हो। अभी बेचारे कारी अजमेर साहब ही तो पढ़ के गए। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि अजमेर पहुंच गया, बगदाद की तैयारी है, इंतजार हो रहा है, इसलिए बगदाद भी जा रहा है। वाह वाह। गौर फरमाइए, आप पढ़िए जरा तारीख को मशाइख काल्पी की। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने बताया कि इस पर काम भी हो रहा है। सुभान। मैं तो चाहता हूं, कहता हूं, और जहां तक मेरा मशवरा होता है अच्छा मशवरा देना चाहिए। जिस खानका में जाता हूं अपने अहले सुन्नत की, मसलक के आला हजरत की, वफादारों की, और वहां कुछ अगर किताबें हैं तो कहता हूं इन बुजुर्गों की किताबें मंजर आम पे लाइए, ताकि कौम को इनकी शानें पता चले, फिर इनकी बारगाहों से फैज हासिल करे। हजरत सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी का कमाल ये था, अजमेर शरीफ में एक बार जब गए ना तो ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं, आंख लग गई, मुराकबे की कैफियत रही होगी, जिक्र की कैफियत रही होगी, आंख लग गई, ख्वाजाए पाक तशरीफ लाए और ख्वाब में आकर के आपने उनके मुंह में पान रख दिया। अचानक जब आंख खुली तो क्या देखते हैं कि मुंह में पान मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, माशाअल्लाह। पान मौजूद था। उस पान की बरकत ये हुई कि जब ख्वाजाए पाक का दीदार सरकारे मीर चाहते थे, दीदार कर लिया करते थे। इसलिए अगर अजमेरी सरकार में अपनी हाजिरी दर्ज कराकर फैज हासिल करना है और वहां का मौका ना मिले तो इस बारगाह में जाके कह देना, जो कनेक्शन और ताल्लुक आपका ख्वाजाए हिंद से है, हिंदुस्तान के राजा से है, हम उसी फैज और उसी रिश्ते का आपको वसीला देते हैं, हमारे ख्वाजा तक हमारी बात पहुंचा दीजिए ताकि मसले हल हो जाए। इंशाअल्लाह यहां से वहां जाएगी और वहां से चली जाएगी बगदाद, बगदाद से फिर चली जाएगी करबला, करबला से जाएगी नशफ अशरफ और वहां से मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। और इंशाअल्लाह रहमान जब
मदीने में पहुंच जाओगे तो फिर आला हजरत का मसलक याद आएगा और कहोगे बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मशाइख कालपी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।